Good morning, students. Myself, Seema, assistant professor. So today we are going to discuss scoliosis. So the scoliosis word comes from the ancient Greek that means obliquity, a bending in a medical condition in which a person's spine is curved from side to side. So in general term, we can say scoliosis is the lateral curvature of the spine. Basically, our spine has two curvature, the primary curvature and the secondary curvature. So it's the concave and convex in the axial basis. So when the spine get lateral curvature, like it shift from the midline, it shift to the sideways to the lateral, either it can be right side or left side. So it is called as, this condition of spine is called as scoliosis. So scoliosis can be classified into three bases. The first, infantile scoliosis, the second, congenital scoliosis, and the third, neuromuscular scoliosis, and the fourth is the degenerative scoliosis. So this classification is on the basis of the cause of the scoliosis. So idiopathic scoliosis is the most common type of scoliosis, and there is no specific identifiable cause. It can be either postural, it can have any other cause. There is no cause identifiable. And according to the age of the onset of it, idiopathic scoliosis, it has again been classified into infantile idiopathic scoliosis, juvenile idiopathic scoliosis, adolescent idiopathic scoliosis, and the adult idiopathic scoliosis. Now the congenital, the caused by the, it is caused by the vertebral anomalies present at birth. So the scoliosis is here present from the birth. Now the neuromuscular scoliosis, it is like its cause is secondary to the primary condition. There is some underlying neurological condition which later on cause the scoliosis. The conditions can be like spina bifida, spinal muscular dystrophy, cerebral palsy, or any other neurological condition that later on cause scoliosis will come under neuromuscular scoliosis. Now the degenerative scoliosis. As the word degenerative scoliosis, the word degenerative denotes, it's come from the degeneration. The degeneration can be due to after the trauma or any other conditions like osteoporosis. So due to the degeneration of the spine, weakening of the spine got the lateral curvature and the scoliosis occurs. So these are the classification of the scoliosis. Now we will come to the clinical manifestation. So scoliosis mainly occurs in girls. It is more common in girls than boys, and among all the types of scoliosis, the idiopathic scoliosis is most commonly present. And among the idiopathic scoliosis, the adolescents idiopathic scoliosis is most commonly found. That's the between the age of 10 to 16, and it progresses throughout the growth spurt year. In adulthood, it usually do not progress. It is non-progressive. And typically a non-rigid curve occurs as a single, however rigid primary curves associated with a secondary curves. The curves in the dorsal or lumbar areas are usually left. So अगर scoliosis हमारे thoracic region में और lumbar region में होता है, तो most commonly ये left side curvature को gain करता है. Right side is also found, but most commonly हमारे left side की lateral curvature होती है. और जो body होती है वो वापस से हमारे क्या कहते हैं, body की presentation due to scoliosis change हो जाती है. जैसे कि हमारी body में asymmetry हो जाती है. One side की shoulder, जिस side lateral curvature हुआ है, shoulder high होगी, limb length shortening होगी, scapula जो है वो हाई पोजीशन में चला जाएगा, रिब केज जो है वो डिफॉर्म्ड दिखेगी, वन साइड की रिब केज वाइडन हो जाएगी, वन साइड की एग्रीगेट कर जाएगी. सो दीज आर द वेरी these are the clinical manifestation. Pain present hoga, there will be the tightness of the muscles, there will be a painful shoulder blade और क्या कहते हैं uneven shoulders जैसे कि मैंने बताया. So these will be the clinical manifestation of the scoliosis. Now the investigation जो है वो हमारे सबसे पहले तो observation से ही present हो जाएगा. जब हम क्या कहते हैं expose करेंगे body parts को, हम spine को देखेंगे तो वहाँ पे lateral curvature
दिखेगी, इवन अनइवन शोल्डर दिखेगी, एसिमेट्री दिखेगी बॉडी की, और लेटर ऑन स्टेज में जैसे कि लिम्ब लेंथ शॉर्टनिंग हो जाती है. सो दिस विल बी द लाइक इन्वेस्टिगेटिव ऑब्जर्वेटरी इन्वेस्टिगेशन. जो हमारे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो हम कंफर्म करते हैं कि किस एरिया की स्कॉलियोसिस और कितना एंगुलेशन है, वो हम एक्सरे पे करते हैं. तो हम कॉब्स एंगल देखते हैं. जिस जगह जितनी वर्टिब्रा स्कॉलियोसिस में लैटरली कर्व गई है, तो जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है उसके लोअर बॉर्डर से, और जो सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है उसके अपर बॉर्डर से, और जो सबसे लोअर वाली वर्टिब्रा है उसके लोअर बॉर्डर से हम एंगल ड्रॉ करते हैं, और वो एंगल जहाँ पे मीट करता है वो हमारा कॉप्स एंगल होता है. उसके बेसिस पे हम स्कॉलियोसिस को की प्रोग्नोसिस देखते हैं कि कितना ज्यादा प्रोग्रेस्ड है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है या फिर कंजर्वेटिव इंटरवेंशन से हमारे ठीक हो जाएगा. सो कॉब्स एंगल जो है वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, एक मेथड है जिससे हम स्कॉलियोसिस की सीवियरिटी को चेक करते हैं. उसके बाद फिर ट्रीटमेंट जो हमारा होता है वो हमारे डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्कॉलियोसिस पे. उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. जो हमारे लेट ऑनसेट इडियोपैथिक स्कॉलियोसिस होता है वो फिजियोलॉजिकली हार्मलेस होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है, लाइक गर्ल्स में जैसे कि ज्यादा पाया जाता है. तो गर्ल्स की टेंडेंसी होती है स्लाउच्ड पोस्चर में बैठने की, जो स्टडी एजुकेशन फील्ड में जो भी गर्ल्स होती है या नॉर्मली, तो गर्ल्स की एक टेंडेंसी होती है स्लाउच्ड पोस्चर गेन करने की. तो उसकी वजह से जो पोस्चरल स्कॉलियोसिस आता है वो मोस्टली फिजियोलॉजिकली हार्मलेस होता है, विद एज वो ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है. उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हमारी स्कॉलियोसिस जो है वो ज्यादा सीवियर केस में नहीं है, वो रेस्पिरेटरी या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, तो हम मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं. उसमें ज्यादा हमारी ब्रेसेस होती है, सबसे पहले हम ब्रेसेस देते हैं. लाइक अगर हमारा कॉप्स एंगल 20 to 40 डिग्री है, 40 डिग्री से बिलो है, तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करते हैं. उसमें हम ब्रेसिंग वगैरह करते हैं, जैसे मिलवॉकी ब्रेस है या अदर बहुत सारे ब्रेसेस आते हैं जो कि हमारी स्कॉलियोसिस की करेक्शन में हेल्प करता है. अगर हमारे 40 या 45 डिग्री से अबव कॉप्स एंगल हो जाता है तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं. अदर ब्रेसेस जो होते हैं हमारे, वो हमारा हेड हॉल्टर भी हम इसमें देते हैं पेशेंट को, पेल्विक हेलो कास्ट भी देते हैं, हेलो फेमोरल डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी देते हैं. सो हमारे क्या कहते हैं, किस मसल्स पे ज्यादा इफेक्ट है, कितना ज्यादा कर्वेचर है, किस एरिया का स्कॉलियोसिस है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट ब्रेसेस और डिफरेंट ऑर्थोसिस यूज करते हैं. उसके बाद हमारा स्कॉलियोसिस के पेशेंट में गोल्स क्या होता है मैनेजमेंट का, कि हमें कौन कौन सी मसल्स वीकन है और कौन कौन सी मसल स्ट्रेंथन है, इसका असेसमेंट करना होता है. और जो मसल्स वीकन है उसकी हम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम पे ज्यादा ध्यान देंगे, और जो मसल्स शॉर्टन हो गई है, टाइट हो गई है, उसकी हम स्ट्रेचिंग प्रोग्राम पे ज्यादा ध्यान देंगे. उसके बाद जो हमारे शोल्डर ब्लेड और रिब केज पे इफेक्ट आता है, तो अल्टीमेटली फिर हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी. तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिब केज की मोबिलिटी, शोल्डर का जो एसिमेट्री है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम अपने एक्सरसाइज को फोकस करते हैं. तो मेनली हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और हमारा क्या कहते हैं कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस वगैरह इंक्लूड कराते हैं हम इसमें. सो इन दिस वे हम क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो है स्कॉलियोसिस की प्रोग्रेस करते हैं. इन दिस वे वी प्रोग्रेस इन द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट. फिर हमारा अगर क्या कहते हैं कॉप्स एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, 50-52 के रेंज में अगर आ गया है, तो हमें सर्जरी के लिए ऑप्ट करना होता है. सो हम सर्जरी के लिए जब ऑप्ट करते हैं तो सर्जिकली करेक्ट की जाती है स्कॉलियोसिस को. उसके बाद फिर से हमारा फिजियोथेरेपी पार्ट आता है. फिर से जब हमारा फिजियोथेरेपी पार्ट आता है तो पोस्ट सर्जिकल जो हमारा प्रोसीड्यूर होता है फिजियोथेरेपी का, हम उसको फॉलो करते हैं. लाइक जॉइंट, पहले बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, बिकॉज जो भी स्पाइनल सर्जरीज होती है उसके बाद थोड़ा एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है जिसमें इमोबिलाइजेशन के लिए बोला जाता है. तो उस इमोबिलिटी फेज में हमें बेड मोबिलिटी वगैरह, अदर जॉइंट्स को, जो हमारे क्या कहते हैं पेरिफेरल जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी को मेंटेन करना, हमारे लंग्स को हेल्दी रखना, ये सब हमारे गोल होते हैं. उसके बाद जब हमारा पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन फेज खत्म होता है, फिर हम क्या कहते हैं अगेन जो मसल्स हैं हमारे उसकी स्ट्रेचिंग, माइल्ड स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोग्रेस करेंगे हम स्ट्रेचिंग में, फिर स्ट्रेंथनिंग, रिब केज की मोबिलिटी, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग मसल्स की फिटनेस, ये सारी हम चीजों पे फोकस करते स्कॉलियोसिस के पेशेंट को रिहैबिलिटेट करते हैं. थैंक यू.